Good morning, children. Welcome to your qualitative science class, chapter 6, legislature. Yesterday, we discussed some types of bills, like financial bills, ordinary bills, money bills, and amendment bills. I also told you about when a ordinary bill, whenever it's introduced in any house, what procedures, what stages it followed in that. Section 5 stages are there. First reading, there are new law. It is introduced, if a bill is introduced for making a new law, or sometimes it is possible that a current law could be changed due to any reason. At that position, the bill which is introduced in any house, there is a discussion. Later, it is for the second reading is there. The members of these houses, they just discuss and negotiate its positive and negative aspects of the bill. Like if the bill is passed, the effects of this bill on the ordinary people and what are can be the negative aspects of the bill can be the positive and it is beneficial for the people or not. Then it is sent to the committee, where the committee overall sees uh, all the things that is related to the bill. Here the committee and other members of they also discuss. Sometimes they also just ask the members, ministers also concerning to the bill, and they have to give the answers. And sometimes it is possible that if the committee thinks that the bill has some loopholes also, so it can also give some amendments to bring a change in the bill. Later is time to the report stage. In this, the report says that where it is means the bill which is introduced in a house, later the committee reconsider all the issues related to it. In the report stage, once again the whole the things is also discussed, and sometimes the members who were not present or who were not part of that the bill, they are also invited to discuss on this. Then last there is a third reading, where the once again the parliament discuss whole the clause by clause aspects of the bill, and at that time it can be possible the government can make a mind to bring the change. But at this time it is not possible for voting on the bill. It can be possible in the second stage. At this situation, we can assume that if the bill is passed, it is sent to the next house. It can be first or second house. The same procedure is followed there. Three readings are there, five stages are there. Money bill is different. So how the money bill is increased and how it is passed, we will discuss later. Then when the both the houses they give their assent, it is sent to the president for their assent. And we also discuss the probability and conditions also, if it is agree or not agree. अगर एक हाउस से पास होता है सेकंड से नहीं होता है, तो ऑल दी सिचुएशंस वी ऑलरेडी डिस्कस थॉरली कि प्रेसिडेंट कब कब क्या जॉइंट मीटिंग कब बुला सकते हैं, इन व्हाट सिचुएशन व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन बी द जॉइंट सिटिंग कैन बी कॉल्ड, ऑल द थिंग्स वी डिस्कस थॉरली. Today, I just tell you the ordinary bill and money bill. What is the difference between the ordinary bill and money bill? Ordinary bill is related to the ordinary issues, related to the day-to-day issues also, public welfare issues also. So in this way, this bill can be introduced in any house. Second thing that it can be rejected, it can be reconsidered, it can be sent to the next house for reconsideration, and it is not necessary that it should be passed and it should be accepted. The bill can be introduced in any house, and one more thing is that it can be introduced by any member, minister, or even the private member also. So, and there is no time limit. The Rajya Sabha, if it is introduced in Rajya Sabha, the bill can be pending, keep pending for the 6 months, and there is also not necessary that the speaker should identify what type of bill is there whenever it's going to be introduced. On the other hand, we know that money bill it is related to the financing of the country, कि कहाँ पर हमें कौन सा जो है टैक्स लगाना है, टैक्सेशन है, कंसोलिडेशन ऑफ फंड्स है, इनसे रिलेटेड जो भी सारी चीजें होती हैं वो हमारे मनी बिल में आती है. मनी बिल is always introduced in Lok Sabha, and because majority party is there, so there is a chances of passing the money bill is there. There is also a voting system.
Later it is signed to the Rajya Sabha, where the Rajya Sabha has the only the right to keep the bill for only 14 days. And here the consideration of president is very necessary. Recommendation of president is very necessary to introduce this bill in Lok Sabha. And one more thing that whenever the bill is introduced in the Lok Sabha, the speaker, the assembly lead, the speaker who it is the bill, money bill or not, it is decided by the speaker. In this way, we see that numerous powers are enjoyed by the Lok Sabha rather than the Rajya Sabha. Especially, I can say that on the issues, on the matters of money and expenditure, taxation, consolidated fund, these are in all money bills. I told you also Article 110. So this is the difference. The money bill are also not rejected. Can be rejected from where? It is not rejected in the Lok Sabha. If it is sent for the reconsideration of the Rajya Sabha cannot reject it. They only keep for the 14 days. So in this way, there is a numerous difference. There is a vast difference between ordinary bill and the money bill. So yesterday I also told you about the finance bill होता है. इसमें क्या difference होता है? Finance bill, it is the article in 110. It is totally related to the money bill, but Article 117 it is related to the finances. Finances means whenever it comes in our mind, it is we always think about the expenditure of the country, that it is on the public welfare, on the another also. But in Constitution, it is separately given in Article 110 and Article 117 कि दोनों के आर्टिकल्स में क्लियर लिखा हुआ है कि ये चीजें मनी बिल में आएगी, ये चीजें फाइनेंस में आएगी. सबसे बड़ी बात है कि जो फाइनेंशियल जो है वो बिल कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, कंसिडरेशन के लिए भेजा जा सकता है, एंड इट कैन बी ट्रीट लाइक अ ऑर्डिनरी बिल. लेकिन मनी बिल ऐसा नहीं होता. तो हमने ये सारी चीजों को डिस्कस किया. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ रहा है, that is how does the parliament control the executive? Why this question arises here? First of all, we have to think about, as we know that the organs are there. ठीक है? Executive की अगर हम बात करें, whenever we talk about executive, the members of parliament they are included in executive, and the leader of the majority, prime minister, president, civil servants, councils of ministers, they are the executive. In this way, we come to know that executive is more powerful. Not in comparison, I am saying the legislature come powerful. No, I am just saying that कि जो एग्जीक्यूटिव है इसका मेजॉरिटी होती है. एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी और इट कैन बी अ कोalition गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट बनी है, इट मीन्स इट्स वेरी क्लियर कि उसकी मेजॉरिटी है, उस पार्लियामेंट की मेजॉरिटी है. तो वी सी दैट द पावर्स आर एंजॉयड बाय एग्जीक्यूटिव, एंड इट इज वेरी सिंपल थिंग ऑल्सो कि पावर्स जो है, sometimes we feel that the executive is just behaving like a arbitrary ruler, tyrant ruler. कई बार ऐसा लगता है. क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो पावर्स है वो मोस्टली कौन एंजॉय कर रहा है? एग्जीक्यूटिव. आज हमारे सामने भी क्या देख रहे हैं हम कि जो हमारी कंट्री के लिए पॉलिसी वगैरह है उनका जो भी, तो हमारे सामने जो एक पर्सनालिटी आती है वो कौन आता है? हमारे प्रधानमंत्री. तो वो कई देश को कोई भी चीज करनी है, लोगों से कोई कम्युनिकेशन करना है, तो अगर हमारे सामने कोई पर्सनालिटी है तो वो है. तो हमें हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन सी आ जाती है दैट द maybe that the executive is more powerful than the legislature. Yes, it is also true that the executive, because it has the majority in the parliament to enjoy all the powers. But on the other hand, the constitution framers, they were the credited people, the people that believed in them. That's why they think about all that time the constitution was framed. They that time they thought about all the possibilities and problems related to all the power sharing issues. That's why there is a clear described there the checks and balances also there. Now, it depends on the legislature activeness and vigilance. I always tell you that democracy is only possible with the maximum participation of the people.
It is only possible through this route. Because if we are neutral, if we are ignorant, if we don't have political awareness, how we can participate in the decision making of the government? How we can aware, we can know the policies and program of the that is the government, and we know these program policies are formulated for the welfare of the people. But if we don't know, we cannot get the benefit or profit of all these policies. Like the same way, we know that if legislature is active and vigilant, it can control over the executive by asking so many questions. ऐसे नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव का गर्दन पकड़ लेगी लेजिस्लेचर जाके. No, there is a system also. There are the ways and means where the legislature can keep control on executive. So that's why it's very necessary that vigilance and active also. Achha, I just in the last I'll discuss one question with you. Here the legislature's its activeness and vigilance is required to control the executive. And there are many means to control there are so many means to control the executive. And why it is necessary? Executive को पे control करना भी क्यों जरूरी है? It's necessary for the account to make sure of the accountability of the executive. बिकॉज अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है, किसके मतलब प्रति बनती है, किसके लिए बनती है, दैट इज टुवर्ड्स द पीपल. सो टू एंश्योर दिस अकाउंटेबिलिटी, ऐसे नहीं कि पावर आ गई तो अपने अकॉर्डिंगली काम स्टार्ट कर दिया, पावर आ गई तो अपने देश की जो पॉलिसी जैसे अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनाना शुरू हुए. नहीं, मीन्स पावर मीन्स द पीपल दे बिलीव ऑन यू. आप लोगों ने अपना विश्वास दिखाया है. दे इलेक्ट यू, दे इलेक्ट द गवर्नमेंट बिकॉज लोगों की एस्पायरेशन थी कि शायद ये गवर्नमेंट आएगी तो हम लोगों के लिए जो वीक सेक्शन पीपल हैं स्पेशली उनके लिए कुछ करें. अब ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योरिटी किसके ऊपर आ जाती है? ये इंश्योरिटी आ जाती है लेजिस्लेचर. इसका दूसरा पहलू देखें. इफ वी सी दैट ऑन द अदर हैंड व्हाट वी सी दैट बिकॉज द रूलिंग पार्टी, दैट बिकॉज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट has enormous powers in parliament. अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट की मीटिंग्स देखी हो, हर बार मैं हर क्लास में ये बात बोलती हूँ क्योंकि उसमें जो हम एक डिसेंट और एक मॉरल हमारा व्यू होता है अपने पॉलिटिशियंस के लिए, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के लिए, इट इज टोटली डिफरेंट देयर. द सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट देयर. समटाइम यू ऑल्सो हियर अबाउट कि पार्लियामेंट में, राज्यसभा, ये लोकसभा में ऐसा ऐसा हो गया. आई जस्ट डोंट वांट टू सी दोज वर्ड्स देयर कि क्या क्या होता है. वी कांट इमेजिन. एक कॉमन पीपल होगा ना, वो भी ऐसा बिहेव नहीं करेगा जो हमारे इन हाउसेज में होता है. और नहीं तो स्टेट लेजिस्लेचर्स असेंबलीज जो होती हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या इतनी एग्जीक्यूटिव के पास पावर है और क्या उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि जो कि इनको इस बिहेव से बचा सके. और एक सही जो चीज होनी चाहिए, व्हाट इज द वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी मॉरल थिंग्स, इट शुड बी गिवन टू द पीपल कि हमारे देश के लोग ऐसे हैं, हमारे लीडर्स हैं. तो कई बार माइंड में ये चीज आती है कि क्या एग्जीक्यूटिव इतने पावरफुल है कि वो कुछ भी कर सकती है. We see that the members of the parliament, they are the representative of the people. That's why they enjoy enormous power. Because people believe on them, they are just representing the issues related to the public welfare. And one more thing, we see that if a member who speaks in a parliament, whatever the member wants to speak, he can. But you just understand this कि वो कुछ भी कहेगा किसी चीज से रिलेटेड और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा. दिस इज द क्वेश्चन. नेक्स्ट थिंग इज दैट कि उस पर कंट्रोल कौन करेगा? यहाँ पर कंट्रोल स्पीकर. स्पीकर का क्या काम होता है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्पीकर? अगर हम ये बात करते हैं तो स्पीकर अगर कोई इस तरह के अपसर्ड वर्ड यूज करता है या अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करता है तो उनको क्या है कि वार्निंग देते हैं, बार बार वार्निंग देते हैं. कई बार कुछ टाइम के लिए उनकी हाउस के मेंबरशिप भी खत्म कर देते हैं. तो इट डिपेंड्स. यहाँ पर जो स्पीकर है ना,
यहाँ पर उसका फंक्शन आ रहा है कि वो किस तरह से कर रहा है। तो लेजिस्लेचर एज अ होल इट चेक द कंट्रोल एंड द लिमिट, also ensure the limits of the executive. There are the means. Now the question arises कि क्या executive इतनी powerful है कि इसके पर कोई control नहीं है? There are the means where the legislature can control on the executive. These are the means, are four means are there, or we can say the tools and instruments are there where the executive, where the legislature controls the executive. What are these instruments? First of all, we will discuss deliberation and discussion. Key instrument topics: deliberation and discussion. Deliberation, whenever deliberation कैसे होगा? Number of people, number of the members of the parliament, when they assemble there, whenever they assemble there, at the time of the introduction of any bill. अब कोई बिल आया है, ठीक है, it is introduced by a minister, by a private member, whatever the. So it's first of all the stage is the deliberation and discussion. Intensive, I should say the intensive deliberation and discussion that takes place there, because it's also very necessary. कई बार ऐसा लगता है कि झगड़ रहे हैं लोग, बात कम कर रहे हैं, टेबल की आवाज आ रही है जोर से, झगड़ा सा कर रहे हैं, एक दूसरे की बात काट रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि क्या ये लोग जो हैं एजुकेटेड नहीं है या इनको अपना डेकोरम नहीं मालूम, ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। बट इट्स ऑल्सो वेरी नेसेसरी कि डिस्कशन जो है, कभी भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, आप लोगों की भी डिबेट वगैरह जब भी होती है या आपने कभी पार्टिसिपेट किया होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके आइडियाज व्यूज अपने आप आते हैं, ठीक है, वो एक सिचुएशन अलग है टॉपिक पर। यहाँ पर क्या है कि द पीपल दे आर कंसर्निंग टू द बिल, the ruling party, they just want to prove that their bill is very productive for the people. On the other hand, the opponent party is the function to criticize the policies and programs, the bill which is introduced by the ruling party. So ये दोनों का function है, and other members also they participate and sometimes they also take favor of opposition party. So in this way we see that discussion and deliberation is there. It's also very necessary. And what are the ways deliberation and discussion? It's very necessary, and there are the ways. I just told you that how the legislature that control executive, they are the, also I told you that the question hour is there, zero hour is there, adjournment motion, no confidence motion. These are the ways where the legislature control the executive. Now here the question hour is that कि यहाँ पर जब पार्लियामेंट की जब भी हाउस होता है उस समय क्या होता है, क्वेश्चन आवर में जो मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दे कैन आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द पब्लिक इश्यूज, रिलेटेड टू सम इम्पोर्टेंस ऑल्सो। तो उस समय वो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उस समय मिनिस्टर्स को दे हैव टू बी रिस्पॉन्ड, उनको जवाब देना होता है। और उस चीज से अगर वो सेटिस्फाइड है तो होता नहीं, वो सेटिस्फाइड हो जाए, उनका काम ही यही है कि जो है उस चीज में आर्गुमेंट करना, उसकी रैशनैलिटी को जानना, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को जानना, कि ये स्पेशली इन एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, इन एग्जीक्यूटिव पे विजिलेंस क्यों जरूरी है। आज अगर मुझे कोई डिपार्टमेंट दे दिया गया, हमारे देश में करप्शन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है? हमने ये देखा हमारे देश के बैंक करप्ट हो गए, पीएनबी बैंक खाली हो गया, ऐसे कैसे पॉसिबल है? वन क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय स्टूडेंट कि जब हमने कहा इमरजेंसी लग गई, 90 की बात है, 75 की बात है, तो मैंने बोला था कि एक ब्लैक 1975 में जो इंदिरा गांधी के टाइम जो इमरजेंसी लगी थी, वो हमारे देश में काला अध्याय, ब्लैक चैप्टर माना जाता है। और उस समय ऐसा एसोसिएशन हुआ था, लोगों को मारा था, खून खराबा हुआ था। आप सोच ही नहीं सकते डेमोक्रेटिक कंट्री में ये भी चीजें हो सकती है। इसका कारण बता रही हूँ आपको। इसका कारण क्या है कि अगर जो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करने वाली लेजिस्लेचर है वो ही विजिलेंट नहीं है, वो ही एक्टिव नहीं है, जुडिशरी इम्पार्शियली तरीके से काम नहीं कर रही है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को बदलते हुए
नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को बदलते हुए टाइम नहीं लगेगा। उस समय जो भी हुआ उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए किया। आपको मालूम है इमरजेंसी के टाइम क्या होता है? इमरजेंसी के टाइम यही होता है कि सारी जो फ्रीडम जो सिविल की भी होती है उस समय बिल्कुल खत्म हो जाती है, पूरा प्रेसिडेंट रूल आ जाता है। तो वो एक पूरा एक प्रोसेस था उस समय जब हुआ। और यही चीज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि वाई इट इज वेरी नेसेसरी टू आस्क क्वेश्चन इन अ पार्लियामेंट। अगर देश को बचाना है तो हमें एक्टिव और विजिलेंट होना होगा। हमारे एग्जीक्यूटिव को भी, इवन अब तो हमारे पास भी बहुत प्लेटफॉर्म है, मीडिया है, प्रेस है, पब्लिक ओपिनियन, फॉर्मुलेट द पब्लिक ओपिनियन, जहाँ पर हमारी बात को जो है ये मीडिया लेकर जाती है आम लोगों के साथ मिलकर। आजकल तो आप देखते हैं कि न्यूज चैनल पे किसी भी टॉपिक को लेकर इंटेंस जो है डिबेट होती है। So in this way we got to know that question hour is there, 0 hour is there. 0 hour के अंदर क्या होता है कि अचानक से जो है जो मेंबर्स है वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू द पब्लिक इश्यूज, public importance. And one more thing is there it is not mandatory for the minister to give reply, but इस तरह का डिस्कशन होता है जिससे क्या है कि वो एक्टिव रहते हैं बहुत ज्यादा माइंड से, हर चीज से, अपने एक्शन से। इसका रीजन क्या है कि एग्जीक्यूटिव को लगता है कि भाई हमसे भी कोई कंट्रोल कर रहा है, हम जो है आर्बिट्री तरीके से काम नहीं कर सकते डिक्टेटर से, चाहे मेजोरिटी बनेगी। तभी तो मैंने आपको कहा कि सिस्टम मेजोरिटी का है, मेजोरिटी पार्टी है, उसके बावजूद भी उन्हें डर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का वो डर जरूरी है। और अगर वो इस तरह से अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझेंगे तो ऑनेस्ट तरीके से काम करेंगे, विजिलेंट तरीके से करेंगे, लोगों के लिए करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर उनके ऊपर कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, तो आपको मालूम नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप अपने से ले लीजिए, अगर आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए, कोई कंट्रोल नहीं पेरेंट्स का, कोई कंट्रोल नहीं टीचर का, तो आपको लगेगा कि आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, what is right, what is wrong, you forget everything. So this situation is there. So that's why it's very essential that family, the elders, their control is very necessary on children as well as of teacher also. So in this way, we see that these executives are aware, they are very educated people, they are very experienced. But in spite of that, they can just behave like a arbitrary ruler, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास सारी पावर, एक बार कुर्सी आ गई है ना, एक बार हमें जो है पोस्ट मिल गई, अब उसका जैसे मर्जी यूज करें। So these are the ways that the question are 0 hour adjournment motion, जहाँ पर कुछ टाइम के लिए या हो सकता है फॉर ए डे के लिए भी जो है पार्लियामेंट को क्या कर दिया जाता है, अध्ययन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। इसके अलावा मोस्टली द मेंबर्स दे आर इंटरेस्टेड, मोस्टली दे आर इंटरेस्टेड इन 0 hour because here they are free to ask any question related to the public issues. Like if they the ruling government, they just bring a policy, just the name of the social welfare for the people's welfare. So sometimes they can ask the question related to all the aspects of the policy कि भाई डाउन ट्रोडन पीपल के लिए क्या है, वीकर सेक्शन के लिए क्या है, अगर इसका इतना ज्यादा इसके ऊपर टैक्स लग रहा है, हाउ दे विल पे। तो इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछकर एग्जीक्यूटिव पे क्या करती है, लेजिस्लेचर कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और हमने ये भी देखा कि नेसेसरी क्यों है, बिकॉज इसी से ही वो अकाउंटेबिलिटी उनकी जो है इंश्योर होगी टूवर्ड्स द पीपल। हमारी कंट्री को जो है एक जिम्मेवार एग्जीक्यूटिव मिलेगी, और जो रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव होगी वो हमारे देश को अगर मिलती है तो हमारा जो कंट्री है उसका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब जो एस्पेक्ट है वो अच्छा होगा। So this is the first tool, the deliberation discussion. Second is that is your approval and ratification of laws. Approval and ratification of laws. Ratification here means again that is the approved by. Another name is also approved by. So ratification, कोई भी law का ratification करना है उसको approval का system क्या है? First of all, we try to understand whenever a bill, whenever a law which is introduced, it's very, in any house it's very necessary that both the houses essence is very necessary to become a law.
as well as the President Assembly. Now the question arises here, how the legislature keeps control through the approval and ratification of laws that legislators on executive. So once again here we know that the executive, it is the ruling party, majority party is there. Okay. So ऐसी situation में any bill which is introduced by the ruling party, the probability is that कि ये जो bill है ये पास हो जाता है, ये जो लॉ है वो बिल पास होकर वो लॉ बन जाता है. बट द सिस्टम इज देयर. व्हाट इज द सिस्टम? दैट द पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट असेंट इज वेरी नेसेसरी. अब क्या ये बहुत इजी है? क्या कई मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी कि इनिशियली हमें लगता है कि ये जो मेजोरिटी पार्टी है उनके पास पावर है, तो वो इजीली इस चीज को जो है सेटल कर सकती है, इजीली अपने फेवर में उस लॉ को पास करवा सकती है, क्योंकि मेजोरिटी है. क्योंकि हमारा यहाँ सिस्टम क्या है? देयर इज अ सिस्टम ऑफ वोटिंग सिस्टम इज देयर. कि यहाँ पर जब बिल का पूरी रीडिंग हो जाती है, पूरा डिस्कशन डिबेट हो जाता है, एंड द लास्ट वोटिंग सिस्टम इज देयर. द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द हाउस दे वोट इन फेवर और नॉट इन फेवर ऑफ दैट बिल. तो ऐसी सिचुएशन में हमें मालूम है कि मेजोरिटी पार्टी है, मेजोरिटी मीन 272 + 1 वोट. इतने मेंबर अगर वहां पर मेजोरिटी में उसके फेवर में देते हैं, क्योंकि हमने सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे उनके मेंबर जो रूलिंग पार्टी के मेंबर है उन्हें लगता है कि ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए, तब भी वो हाँ करेंगे. उन्हें लग रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर गलत है, तो भी वो नहीं बोलेंगे. क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनको एक साथ अगर वो कहीं पर भी डिसअप्रूव करते हैं, इस चीज को एग्री नहीं करते, तो या तो अपनी सीट छोड़ दें या पार्टी छोड़ दें. ठीक है, तो सब कुछ ही उन्हें देना पड़ेगा अगर वो डिसएग्री होते हैं इन सब चीजों से. तो दिस इज द सिस्टम वेयर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हु आर द मेजॉरिटी पार्टी इन द पार्लियामेंट, दे ऑलवेज फेवर इन वोट ऑफ दैट बिल. तो पास होने के चांसेस बहुत है. बट ऑन द अदर हैंड हमें चीजों को बहुत अच्छे से समझना है. इट्स नॉट नेसेसरी दैट इफ द पार्टी हैज द मेजॉरिटी इन लोकसभा हैज द मेजॉरिटी ऑल्सो इन राज्यसभा. अब मुझे एक बात बताओ कि अभी जो राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, वो इतनी जबरदस्त क्यों चल रही थी? क्योंकि बीजेपी की क्या है, लोकसभा में मेजोरिटी है. राजस्थान में क्या चल रहा था? राज्यसभा, राजस्थान में विधानसभा और मध्य प्रदेश में. अब ये चाह रहे थे कि स्टेट के अंदर भी जहां जहां जिस स्टेट में विधानसभा जहां पर इनकी मेंबर्स कम है, वहां पर भी ये अपने मेंबर्स, बीजेपी के मेंबर्स या कांग्रेस के मेंबर्स, आई विल नॉट स्पीक कि ये पार्टी ने ऐसा किया, ये पार्टी ने ऐसा किया. तो उस सिचुएशन में उसका रीजन क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, दो पहलू की बात करेंगे, दो चीजों की बात करेंगे. एक तरफ हमने बात की कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में हमने ये देखा कि मेजोरिटी है. राज्यसभा में हमने क्या देखा कि राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द एमएलए. इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां पर जो रूलिंग पार्टी मेजोरिटी में लोकसभा में है वो राज्यसभा में है. तो ऐसी सिचुएशन में हमने जो अभी बीच में टर्मोइल देखा था, पॉलिटिकल टर्मोइल देखा था, वो यही था कि ये लोग अपनी पार्टी के मेंबर्स को वहां भेजकर अपनी मेजोरिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि क्या होगा, कोई भी बिल होगा तो वो इजीली पास हो जाएगा. अभी क्या चल रहा है कारण कि जहां पर लोकसभा की मेजोरिटी जिस पार्टी की है वहां राज्यसभा की भी होगी. तो उस सिचुएशन में अगर ऐसा होता है तो कोई भी बिल को पास होने में टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, इसका रीजन क्या है कि दोनों में मेजोरिटी है, तो वो कोई भी बिल इजीली रूलिंग पार्टी करा सकती है. बट जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन कि जहां लोकसभा में तो है आपकी मेजोरिटी, लेकिन राज्यसभा में नहीं है. तो जरूरी नहीं है कि राज्यसभा आपको असेंट दे आपके बिल के ऊपर. उस समय क्या हो सकता है कि आपका जो लॉ जो आपने रेटिफाई किया है, हो सकता है सेकंड हाउस ना करे. तो ऐसे ही कुछ इन्होंने इंस्टेंसेस डिस्कस किए हमसे. जनता दल पार्टी का इंस्टेंस डिस्कस किया, एनडीए का किया. ठीक है, मुझे अभी तक याद है कि जहाँ पर लोकसभा के अंदर ही जहाँ कोalition गवर्नमेंट बन रही थी वहाँ वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर सके. कुछ ऐसे बिल थे जो कि एक सभा में पास हुए, जैसे कल ही हमने बात की थी रिजर्वेशन, वुमेन रिजर्वेशन वाला, जिसमें जो है स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज
हमने कहा कि पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेचर्स में जो है इनकी रिजर्वेशन नहीं है, तो वो बिल आज तक पास नहीं हुआ। इसके अलावा हमने बहुत सारे और भी बिल को हम देख सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री देखें तो ऐसे कई बिल पेंडिंग है बिकॉज ऑफ द रीजन की एक सभा से, एक हाउस से वो पास हुए और दूसरे हाउस से नहीं हुए। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि मेजोरिटी जो है वो नहीं है। सेकेंड थिंग, इसका और एस्पेक्ट देखें, दिस इज ऑल्सो गुड, राइट? बिकॉज अगर कोई भी बिल आता है वो इजीली पास हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इसका रेटिफिकेशन हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, इट इज नॉट वेरी एक्टिव एंड विजिलेंट, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, without asking question and without controlling and without any another tools also, कि वो इजीली पास हो जाता है। तो इससे हमारे डेमोक्रेसी पे हमको एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या रूलिंग जो पार्टी है वो एक आर्बिट्री पार्टी है? क्या रूलिंग पार्टी जो है लोगों के लिए काम करती है या सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करती है, या पूरा की पूरी जो हमारी पॉलिटिकल मशीनरी है वो भी इसी तरह से वर्क करती है? तो एक क्वेश्चन हो जाता है। इसीलिए इट्स वेरी नेसेसरी कि कोई भी लॉ, ठीक है, कोई भी बिल जो पास होता है उसका अप्रूवल और जो रेटिफिकेशन है बोथ हाउसेज इज वेरी नेसेसरी, एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बट केसेस आर डिफरेंट केसेस, वी कैन सी कि दोनों में कई बार वो बिल बहुत इजीली पास हो जाता है। जैसे कि करंट में 3 तलाक बिल पास हो गया, ठीक है, राम मंदिर वाला जो हुआ सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हमारे पक्ष में गया, जम्मू एंड कश्मीर वाला देखिए। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसके फेवर में गई, तो यहाँ पर उसका रीजन यही है। बट वन मोर थिंग इज दैट कि हमें सोचना चाहिए कि जो बिल पास हुआ वो लॉ बना, है ना? तो वो लॉ बना तो लोगों के सामने एक चीज आती है कि जो लॉ बना क्या वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं। आप मुझे बताइए कि अभी करंट में जितने भी हमने लॉज बनाए वो कैसे थे? दीज आर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और नॉट? चलिए थोड़ी सी बात करते हैं